afternoon. I hope everyone is fine and safe. So the today's topic is diabetic retinopathy, how to approach a patient and what are the common line of questions which are asked related to this case. So history. Last time भी ये डिस्कस हुई थी मैंने इसको जरा रीराइट किया थोड़ा सा नीट किया है so that कि हमारे जो न्यू कैंडिडेट्स हैं they can have an idea. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बायोडाटा लेना होता है पेशेंट का उसका एक फॉर्मूला है NASOMA नेम एज सेक्स ऑक्यूपेशन मैरिटल स्टेटस एंड एड्रेस then comes the presenting complaint the diabetic retinopathy की presenting complaint काफी variable किस्म की हो सकती है so the visual loss and blurring of the vision are most common and the common ophthalmic presenting complaints डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी और बाकी डिजीजेस में भी क्या क्या हो सकती है कि द पेशेंट कैन कम टू यू विद द ब्लर्ड विजन और विजुअल लॉस ही कैन प्रेजेंट विद पेन वाटरिंग रेड आई और डेविएशन ऑफ द आईज द हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट which helps you in reaching a differential diagnosis and diagnosis so उसका एक फॉर्मूला है DOPA-VERA duration of the visual loss, onset, unilateral or bilateral, progression, pain, aggravating factors, variability, extent of the visual loss, relieving factors, recurrence, and association. Associations क्या क्या हो सकती हैं? Especially related to this our particular case, redness, watering, photopsia, photophobia, floaters, flashes, halos, curtain in front of the eye, distortion of the vision or double vision, color vision. प्रॉब्लम्स हो सकते हैं रिकवरी ऑफ द विजन उसकी कैसी हुई थी एंड सिस्टेमिक हिस्ट्री ऑफ पेरिफेरल सेंसेशंस आपने लाजमी पूछनी है इन द पास्ट ऑक्यूलर हिस्ट्री देयर इज अ जनरलाइज्ड फार्मूला GST minus CA you have to ask inquire about the glasses surgery trauma medicines intravitreal injection laser other eye contact lens or amblyopia then comes the past medical, surgical, personal, allergic, drug, socioeconomic, and gynecological and birth history if needed. In the past medical history, you have to ask about all these diseases. Okay. In the past medical history, you have to inquire about all these conditions. And the past surgical history, you have to inquire about the history of amputation and the personal smoking, alcohol, pregnancy, eating habits, allergies, topical systemic medications or OCPs, antiplatelet medication, allergy. Family history is very important. And socioeconomic history because उसको आपने ट्रीटमेंट देनी है so आपने उसको inquire करने के अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता In the examination, you have to carry out the general physical examination and then the slit lamp examination. Slit lamp examination में आपने ये starting from the adnexa up to the cranial nerves आपने सारा कुछ check करना है. Adnexa में styes, aneurysma, corneal, precorneal tear film record. Diabetic patients जिन्हें वो dry eye उनमें हो जाती है. There is a corneal ulcer, anti-chamber cells, iris में. And new vessels, transformation defects, pupils, reaction shade, lens, cataracts, photophobia, vitreous hemorrhage है, fundus में आपने retinopathy को grade जरूर करना है. This is a common mistake. Patient, the candidate they are unable to grade the retinopathy. And साथ में अगर कोई hypertensive retinopathy भी है तो आपने उसको भी grade करके examiner को अपना diagnosis diabetic retinopathy and hypertensive retinopathy दोनों चीजें बतानी है. Because the diabetes and hypertension very commonly coexist. IOP is very important if the new vessels are present and check for the cranial nerves, calces. Now, the next section is studies related to the diabetic retinopathy. ये काफी सारी हैं, so I will go through them quickly. The first one is diabetes control and complication trial and the UK PDS study. It reveals that high blood pressure and blood sugar control slowed the progression of retinopathy, development of the macular edema, need for the treatment, and other microvascular complications. ये point बहुत important है कि change in the course of retinopathy was not evident before 3 years of tight control.
Then number of microaneurysms at the initial presentation is directly associated with the risk of long-term diabetic retinopathy complications. So पेशेंट अगर अर्ली प्रेजेंट करता है आपने उसके माइक्रो एन्यूरिज्म का नंबर जरूर डॉक्यूमेंट करना है बिकॉज इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड कि उसको बाद में डायबिटिक रेटिनोपैथी की कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क कितना होगा. If there are more than 5 microaneurysms in one eye, it is associated with 40%. Then it means that 40% of the patients will develop advanced diabetic eye disease. Then there are a lot of studies for anti-VEGF. DRCR.net protocol I था कि anti-VEGF plus laser does not confer any benefit in the treatment of central involving CSME and may result in the worst visual outcome. And many patients treated with anti-VEGF therapy, they will experience resolution of DME, not require further treatment. And triamcinolone plus ranibizumab जो है उसके कोई worst visual outcome नहीं आए थे. And by 4 years, very few treatment required ongoing rani therapy. प्रोटोकॉल टी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था तो some of the candidates जो थे they were unable to answer. So इसमें क्या है कि पेशेंट के सेंट्रल इन्वॉल्विंग डीएमई एंड विजन more than 20/50 there is no significant difference in the visual outcome between the three anti-VEGF जो कि टेस्ट की थी उन्होंने. बट अगर 20/50 से कम विजन है तो एफलिवर्सेट का सिग्निफिकेंट बेटर विजुअल आउटकम है. यस डॉक्टर अहमद आई हैव. तो अगर विजन 615 या उससे कम है तो एफलिवर्सेट हैज अ सिग्निफिकेंटली बेटर विजुअल आउटकम. Then the bevacizumab treated patients जो हैं they are less likely to attain an anatomically normal OCT. उनकी OCT के ऊपर abnormality रहेगी but visual outcome जो है that will be attained. And each agent has different safety profile. Studies for anti-VEGF ये प्रोटोकॉल एस है. ये 2019 में आया था एंड इसमें उन्होंने कंपेयर किया था कि पीडीआर के लिए अगर हम एंटी-वेजेफ लगाएं और लेजर लगाएं तो दोनों का कंपैरिजन उन्होंने किया कि विच वन इज बेटर और विच वन हैज ग्रेटर एफिकेसी. तो उन्होंने कंक्लूड किया कि इंट्राविट्रुअल रेनिबिजुमैब इज नॉन इंफीरियर टू द पेनरेटिनल फोटोकोगुलेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पीडीआर एंड विजुअल फील्ड आउटकम्स जो थे वो ऑब्वियसली एंटी-वेजेफ ग्रुप में ज्यादा अच्छे थे बिकॉज जो पीआरपी है वो विजुअल फील्ड लॉस करवाती है. Fewer patients in the ranibizumab group develop visual loss due to diabetic macular edema, and both groups have very low rates of adverse reaction to treatment. Then, ये ranibizumab की trials हैं in the diabetic retinopathy. So, intravitreal ranibizumab it is superior to sham injections to treat patients with vision loss secondary to diabetic macular edema. And जो important point है, second point जो है that is important that अगर रेनिबिजुमैब का ट्रीटमेंट हमने डिले किया है 24 मंथ तक डिले हो गया है तो फिर उसका इफेक्ट सिग्निफिकेंटली कम होगा एज कंपेयर टू अगर हमने अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है. द थर्ड पॉइंट इज कि रेनिबिजुमैब जो है इट हैज लो रेट ऑफ सीवियर साइड इफेक्ट्स. अगेन अ स्टडी फॉर रेनिबिजुमैब इन डायबिटीज there is no second point there is no difference between ranibizumab alone and reni plus laser groups. So अगर आप खाली ranibizumab भी दे देते हैं पेशेंट को then efficacy उतनी ही होगी. And the last point is ranibizumab treatment maintain visual improvement from 12 to 36 months. So इसका जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है और एफिकेसी का ड्यूरेशन है that is 12 to 36 months. रिजॉल्व एक और स्टडी थी जिसमें उन्होंने रेनी अलोन एंड रेनी कंबाइंड विद लेजर को कंपेयर किया था और उन्होंने देखा कि रेनी मोनोथेरेपी कंबाइंड विद लेजर इसका स्टैंडर्ड लेजर के कंपैरिजन में इट हैड बेटर विजुअल आउटकम इन सेंट्रल रिवॉल्विंग डीएमई. नाउ दीज आर द स्टडीज फॉर एफ्लिबर्सेट विविड एंड विस्टा. उनके तकरीबन एक जैसे रिजल्ट से इसलिए मैंने उनको कंबाइन कर दिए. तो इंट्राविट्रियल ट्रीटमेंट विद एफ्लिबर्सेट 4 वीकली दिया और 8 वीकली दिया. लेकिन इसमें कंसीडर करने वाली बात यह है कि 5 लोडिंग डोजेस लेनी है मंथली इंटरवल्स पे. मतलब आप पेशेंट 0 मंथ का है तो आपने अगले 5 महीने उसको हर महीने इंजेक्शन लगाना है.
और 5 माह के बाद आपने उसको इधर 4 वीकली और 8 वीकली इंजेक्शन लगाना है। तो उन्होंने देखा कि 4 वीकली में भी और 8 वीकली में भी विजुअल आउटकम जो था वो सेम था। सो उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि अगर हम इनिशियल 5 लोडिंग डोजेज जो कि मंथली इंटरवल्स पे हैं, उसके बाद अगर हम 8 वीकली भी लगा देंगे तो पेशेंट की विजुअल आउटकम उतनी होगी जितनी 4 वीकली लगाने पे थी। Then these are the studies for laser, ETDRS, focal grade laser photocoagulation जो है decrease the moderate visual loss by 50% in patients with clinically significant macular edema. This point is very important and it is frequently asked in the viva. कि आपके पास CSME का पेशेंट आ जाता है और या शॉर्ट केस में या टॉक्स में या लॉन्ग केस में, और एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आप लेजर लगाओगे या नहीं लगाओगे। सो बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ ETDRS यू कैन कॉन्फिडेंटली से कि सर मैं इसको फोकल ग्रिड लेजर लगाऊंगा बिकॉज इट डिक्रीजेस द मॉडरेट विजुअल लॉस बाय 50%। स्कैटर लेजर जो है इट शुड बी डेफर्ड एंड एटलीस्ट पेशेंट की सीवियर NPDR हो और या PDR हो। And there are no ocular contraindications for aspirin therapy when required for the other medical indications. Now these are the studies for steroids in diabetes. DSCR.net protocol B था, उन्होंने कहा कि steroids का effect compared to laser कोई इतना ज्यादा नहीं है। Then protocol I में उन्होंने कहा कि pseudophakic patients जो है उसमें steroids का beneficial effect है। Then there was a NEAT study, ये dexamethasone Zoldyx implant है जिसके ऊपर हुई, and it found that it is effective and reduce the number of injections required by the patients. अब यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि जो इम्प्लांट्स हैं इधर दे आर द फ्लूसिनोलोन और डेक्सामेथासोन इम्प्लांट्स, उनकी डोजेस एंड उनके कितनी देर तक वो इफेक्टिव रहती है, या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उनका कितनी देर तक रहता है, ये लाजमी वो सुनते हैं। सो आपने वो रट के जानी है कि आपने मुझसे वो you don't have to think about their doses, you just have to say it. अब डेक्सामेथासोन की जो डोज है दैट इज 0.7 मिलीग्राम। देन फेम स्टडी, इसमें उन्होंने फ्लोसिनोलोन जो इंसर्ट से उसके ऊपर स्टडी किया एंड दे फाउंड दैट there is improved BCVA over 2 years. This to benefit ratio was superior for the low dose insert. And हर पेशेंट में ग्लूकोमा सेल थी, उनको तकरीबन रिक्वायर्ड थी, एंड ऑल द पेशेंट्स डेवलप कैटरेक्ट। अब डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर विट्रेक्टमी का क्या रोल है, ये भी एक स्टडी हुई थी। तो पेशेंट्स विद सीवियर PDR हैव हाई रेट ऑफ विजुअल लॉस। एंड आई एम कमिंग टू द लास्ट पॉइंट। Last point is very important. In eyes with severe active neovascular projection and moderate or no vitreous hemorrhage, early vitrectomy is of benefit. ये टाइप 1 डायबिटीज की बात हो रही है। अर्ली विट्रेक्टमी ऑफ बेनिफिट जिसके अंदर फाइब्रोस्कुलर प्रोजेक्शंस भी थी और मॉडरेटली या न्यू वेसल्स भी थी, और उसके अंदर हम एक्सटेंसिव स्कैटर लेजर नहीं कर सकते थे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, द लास्ट वन, कि अगर पेशेंट डायबिटिक है और उसके अंदर फाइब्रोस्कुलर प्रोजेक्शन है, स्फीयर न्यू वेसल्स हैं, आप PRP नहीं कर सकते, तो अर्ली विट्रेक्टमी का उसके अंदर बेनिफिट है। एक्सक्यूज मी सर यहाँ पर सर ये मॉडरेटली सिवियर न्यू वेसल का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म मॉडरेटली सिवियर न्यू वेसल? देखें, एक अगर आप डायबिटीज रेटिनोपैथी की क्लासिफिकेशन देखें तो उसके अंदर PDR के अंदर 3 है। एक तो ये है कि माइल्ड टू मॉडरेट, देन है हाई रिस्क एंड देन है एडवांस। ठीक है, तो ये माइल्ड टू मॉडरेट वाली इसमें कैटेगरी में आएंगे, जिसमें NVD is less than 1/3 and or NV is less than 1/2. यहाँ पे मैंने अब रखा था कॉफी ब्रेक, बट अगर इफ यू वांट तो हम यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। आप मुझे काइंडली चैट बॉक्स में बता दें, शुड वी कंटिन्यू और शुड वी टेक अ ब्रेक? ओके, कंटिन्यू करें, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे नाउ हमारा अगला सेक्शन था, दैट वाज डिस्क्रिप्शन ऑफ द पिक्चर्स। अच्छा, यहाँ पे मी एंड डॉक्टर फातिमा जो है, हम मिल के आपकी डिस्क्रिप्शन सुनेंगे एंड देन वी विल करेक्ट यू इफ यू हैव एनी मिस्टेक्स। डिस्क्राइब द पिक्चर। सर जो लेफ्ट पिक्चर है सर, on posterior segment examination of the patient's right eye, the optic disc is appearing normal, pink with the healthy neuroretinal rim. The cup to disc ratio is 0.3, and there इसमें सर इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सर it seems like there are some few suspicious vessels over the optic disc. Okay, आगे जो है सर the vessels are dilated. The vessels seem tortuous and dilated, and there seem to be a new vessel, suspicious vessel along the inferotemporal arcade, and hemorrhages, scattered hemorrhages along the inferotemporal quadrant, and few cottonwood spots. And how many cottonwood spots? Sir, इसमें तो it seems like almost three or four cottonwood spots. Okay, good. Sir, there is it seems like there is macular edema. The foveal reflex is absent, and there is a retinal thickening. It seems like, लेकिन चूंकि सर उस सराउंडिंग में सर कोई एक्सुडेट्स नजर नहीं आ रहे, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट सर। इसमें सर प्रॉब्लम बहुत होती है सर। Sir, on posterior segment examination of the left eye, there is the optic disc appears to be normal. The optic disc appears to be normal. The neuroretinal rim appears to be healthy. The cup to disc ratio is about 0.3 to 0.4, and इसमें भी सर ये थोड़ा सा zoom, इसमें भी सर कोई suspicious vessel, it seems like there are no suspicious vessels over the disc, but the superior and inferior temporal vascular arcades seem normal. Inferior temporal पे सर जो है the aspect seems a little bit pale, inferior temporal aspect of the retina, और जो है there is macular edema. Okay, can you appreciate these red dots? I'm Yes, pointing sir. on it. Sir, What are these? Yes, sir, it seems that they are microaneurysms, sir. Okay, and there is one also here. Yes, sir. Yes. So it seems like in this patient there are almost a total of 3 microaneurysms. Okay, 3 to 4 microaneurysms, and और सर और तो सर इसमें कोई फाइंडिंग मुझे नजर नहीं आ रही है सर। ये मैकुलर एडिमा में सर बहुत प्रॉब्लम होता है सर। अच्छा, देखिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये जो फंडस फोटोग्राफ है दैट इज अ 2 डायमेंशनल पिक्चर। उसके अंदर मैकुलर एडिमा पे कमेंट करना इज अ बिट डिफिकल्ट, बिकॉज एडिमा जो है जाहिर है रेज्ड कोई एलिवेशन होगी, आपको 3D में पता नजर आएगी, तो फिर यू कैन सेफली कमेंट। बट इसमें अगर या तो बहुत ज्यादा ग्रॉस या डिफ्यूज मैकुलर एडिमा है तो वो तो एप्रिशिएट हो जाएगा, बट इफ देयर इज मिनिमल मैकुलर एडिमा और देयर इज अ फोकल एडिमा, then it is difficult to appreciate on this fundus photograph. So
you can say कि sir there appears to be, or I want to confirm it on the investigations and the clinical examination. So now Dr. Fatma will carry on. Assalamualaikum. मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है and currently done with my second ophthalmology and my fellowship of Royal College of Edinburgh and fellowship of International Council of Ophthalmology. And I wish you all best of luck. So there are few tips that while describing the fundus photos or while you are doing the fundus examination of the short case, you have a very short period of time. So all of you should concentrate on the things that you have to speak. First of all, आप अपनी डिस्क की डिस्क्रिप्शन जो है वो पहले भी मैंने सेशन में बताया था कि देयर आर 8 to 9 पॉइंट्स जो आप अपनी डिस्क की डिस्क्रिप्शन को पक्का कर लें, जैसे कि मुझे डॉक्टर साहब ने भी बताना शुरू किया कि द डिस्क इज नॉर्मल और देयर आर सस्पिशियस लेसन्स और ये चीजें अगर आप डिस्क की डिस्क्रिप्शन इस तरह बताना शुरू करें कि द कलर ऑफ द डिस्क, द साइज ऑफ द डिस्क, the vertical CD ratio of the disc, the neuroretinal rim of the disc, the peripheral area of the disc. तो इसमें इतने ज़्यादा पैरामीटर्स जो हैं वो खुद ब खुद कवर हो जाते हैं. तो आपने नहीं बताया, so अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँगी तो मैं इसको यही बताऊँगी कि the color of the disc is pinkish yellow, the margins of the disc is dark clear, there is no peripheral atrophy, the vertical CD ratio seems to be 0.4 to 0.5 and जो इसकी अब इसकी मॉर्फोलॉजी के मुताबिक इस पे मुझे कोई सस्पिशियस लेसन नजर नहीं आ रही. सो जहां मैंने टेस्ट को खत्म किया, नाउ वी विल कम टू द वेसल्स. सो देयर इज द सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी एंड इंफीरियर सुपीरियर एंड इंफीरियर टेम्पोरल आर्टरी. जब आप इसमें भी अगर आप पेशेंट देखते हो, डायबिटीज का पेशेंट देखते हो, 3-4 चीजें आप देखोगे. आपका वेस्कुलर कैलिबर कैसा है, आप वीनस डायलेशन को नहीं देखते, व्हिच आर द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट अर्ली जो हम वीनस ब्लीडिंग और उन चीजों के पीछे पड़ जाते हैं. उससे पहले क्या हम सब ये देखते हैं कि पेशेंट का वीनस डायलेटेशन है, वीनस कैलिबर ज्यादा हुआ है, जो कि हाइपोक्सिया का वेरी अर्लीस्ट साइन है. हमने ये देखा नहीं है. सो सेकंड चीज व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इसमें मुझे एट्रोवीनस स्निपिंग नजर आ रही है? आई विल गो फॉर इट. फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं we will just give me a minute. There are a lot of complaints that most of the people cannot hear. Let me check on my side. Can you hear me now? Please tell in the chat box that you guys can hear. The things are okay from my side. You guys can hear now? Madam, we can hear you. Is my voice clear? Please tell me in the description box. Dr. Mateen, Dr. Anam. Okay, Dr. so I Amna. think that we are good to go. We can start. Okay. I will repeat it for all of you. Then you can guys can do practice that whenever you are doing a fundus examination, especially for your short case, which is a very brief period and panic period of the time. First of all, concentrate on 3 things. You have to describe the fundus pictures and किसी भी चीज की hypertensive diabetes वो जो आपका case आएगा. There are 3 components: the disc, the vascular arcades, and the macular area. Until unless it's a retinal detachment case, वो उस पे आपको वो उसके साथ दिखाएंगे indirect ophthalmoscope के साथ, अदरवाइज आप 90D पे ही देखेंगे और ये 3 कंपोनेंट्स हैं जिन पे आप एम्फसाइज करोगे. मैं प्लीज आप लोगों को डिस्क के लैंडमार्क्स बता रही हूँ. प्लीज मेक इट अ हैबिट. अगर आप इन लैंडमार्क्स को फॉलो करेंगे, आप लोग चीजों को अचीव कर लेंगे और सारी जो है फाइंडिंग्स को पिक कर लेंगे. अगर आप इन लैंडमार्क्स को रैंडमली लेके चलेंगे, जो मैंने अपनी तैयारी में अपने सीनियर से और सबसे ये सीखा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% यू पिक, क्योंकि 100% फाइंडिंग्स कोई भी पिक नहीं करता एग्जाम के अंदर. अब आप एक अपना रूटीन बना लो अंदर से बाहर की तरफ डिस्क की. जैसे वर्टिकल सीडी रेशियो आपने डिस्क की बता दी है, कितनी वर्टिकल सीडी रेशियो है उसका आप
न्यूरोरेटिनल रिम बता दो। न्यूरोरेटिनल रिम में अगर थिनिंग आपको किसी क्वाड्रेंट में बहुत ज्यादा लग रही है, आप इजीली बता सकते हैं। न्यूरोरेटिनल रिम हेल्दी है, पिंकिश है। डिस्क का कलर बता दो। पेरिपेपिलरी एरिया में एट्रोफी है, एट्रोफी किस तरह की है, क्रिसेंटिक है, साथ में आपको मायोपिक फंडस मिल रही है या नहीं मिल रही है। आपने डिस्क का कलर बता दिया, शेप बता दिया, साइज बता दिया, पेरिपेपिलरी एरिया बता दिया, सस्पिशियस वेसल्स बता दी, वर्टिकल सीधी रेशियो बता दी, कपिंग बता दी, कोई आपको उसमें लेमिनर डॉट साइन पॉजिटिव मिल रहा है। इस तरह मोस्टली आप इसकी चीजों को आपने कवर कर दिया। उसके बाद चलते हैं वेसल्स की तरफ। अब ईच एंड एवरी पाकिस्तानी पेशेंट जो पार्ट 2 वाले एग्जाम्स में रखेंगे, डायबिटीज के साथ हाइपरटेंशन फ्री में मिलेगी आपको। अगर आपने एट्रियोवीनस निपिंग मिस वहां पे कर दी है, तो आपने एग्जामिनर को खुद कहा है कि मुझे लिख कर दो। सबसे पहले जो मैं यहाँ पे चीज देखूंगी वो मैं देखूंगी कि वेन का कैलिबर क्या है और एट्रियोवीनस निपिंग प्रेजेंट है कि नहीं, जो कि इस डायग्राम में मैं इतनी एप्रिशिएट, मुझे सुपीरियर वेस्कुलर आर्टरी में मुझे थोड़ी सी एट्रियोवीनस निपिंग लग रही है, बट मैं इसको कमेंट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये अभी ये 2D डायग्राम है। ये वेस्कुलर आर्केड से कमेंट करने के बाद अगर यहाँ पे मुझे कोई वेस्कुलर आर्केड के ऊपर कोई फाइब्रोवेस्कुलर फ्रॉन मिल रहा है, कोई हेमरेज मिल रहा है, कॉटन वुड स्पॉट मिल रहा है, और एक और बात, अगर कॉटन वुड स्पॉट मिल रहा है, यू हैव टू मेंशन द नंबर ऑफ द कॉटन वुड स्पॉट, द लोकेशन ऑफ द कॉटन वुड स्पॉट। कॉटन वुड स्पॉट मिलने का मतलब ये है कि आपका पेशेंट ऑनगोइंग इस्कीमिया को सफर कर रहा है एंड यू हैव टू relieve that ischemia, but by doing pan-retinal photocoagulation या जो भी आपकी as a आपकी स्ट्रेटजी है। इस वक्त मुझे इसकी वेस्कुलर आर्टेरी में ये वाली ऊपर में फाइंडिंग नहीं मिली। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके मैकुलर एरिया के ऊपर। ठीक है, अब आप इसके मैकुलर एरिया के ऊपर जब आप आएंगे तो आप ये डायग्राम देखते हुए तो नहीं ना बता सकते हैं कि भी इसमें मैकुलर एडिमा है या नहीं है। ठीक है, मैं इसको ये कहूंगी कि देयर इज लॉस ऑफ द फोवेल कॉन्टूर, यानी कि वो जो शीन होती है या वो जो शाइन होती है वो मुझे नहीं मिल रही है। ठीक है, एंड देयर आर डिफ्यूज हेमरेजेस अलोंग विद cotton wool spots which are 4 in number. ठीक है, and they are involving the inferior quadrant of the macula and slightly superior to the inferior vascular arcade. So अगर आप anatomy को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर देते हैं, क्वाड्रेंट को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर देते हैं, मैंने 4 cotton wool spots बता दिए, आप लोगों ने इसकी मॉर्फोलॉजी भी बतानी है, क्या ये स्कैटर्ड हेमरेजेस हैं या ये थोड़े से कॉन्फ्लुएंट एक क्वाड्रेंट को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपने इनको भी आइडेंटिफाई करना है। स्कैटर्ड हेमरेजेस एक ये, these are not scattered hemorrhages, this is a bunch of hemorrhages which are mostly confluent and involving a quadrant। तो आपने इस तरह करके इसकी फाइंडिंग्स बतानी है। अब आप में से जो भी करना चाहता है, जो साथ वाली पिक्चर को डिस्क्राइब करना चाहता है वो करता जाए, या इसी पिक्चर को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो अब मैं फिर उसको अनम्यूट कर देती हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, ये क्वेश्चन है, ये वेसल्स में आपने 3 मेन चीजें बताई थी, वो एक वैन का कैलिबर है, एक एवी निपिंग है, और तीसरा क्या है मैडम? देखिए, एट्रियोवीनस निपिंग आपने देख ली, आपने हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी देख ली, आपको कहीं पे कॉपर वायरिंग तो नहीं मिल रही, आपको क्या आर्टीरियोलर एटेन्युएशन जनरलाइज्ड मिल रही है, क्या आपको जो है वो ब्लीडिंग मिल रही है, या कहीं आपको वेनस डायलिटेशन मिल रही है। देखिए, ये तो फिर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू सी, लेकिन ये 3-4 चीजें जो आपने लाजमी देखनी है हर पेशेंट के अंदर। ओल्ड एज पेशेंट आएंगे आपके एग्जाम में मोस्टली 50 से 70 वाले, तो उनमें ये सारी फाइंडिंग्स प्रेजेंट होंगी, सो आपने इनको लाजमी देखना है। एंड आई नो अ पर्सन जिनका लॉन्ग केस फेल हुआ था इस वजह से, ही प्रेजेंटेड डायबिटीज सो वेल, लेकिन उन्होंने हाइपरटेंशन को मिस कर दिया था। अच्छा, आप में से प्लीज वो डिस्क्राइब करेगा इसको। The left eye now. The left eye now, because I have well described the right one. Yes, ma'am, I can describe this. Okay, Dr. Ahmed, please go ahead. This is color fundus photograph of the left eye showing disc, vessels, and macula. The vertical cup to disc ratio is 0.3 with healthy neuroretinal limb, and these margins are regular. There is no peripapillary atrophy. The vessels originating from the disc are of normal caliber, and there is a white and yellowish white opaque retina along the supratemporal and infratemporal arcade. The macular reflex is dull, and there is a grayish appearance of macula.
there are microaneurysms along the posterior pole and along the supratemporal quadrant. The periphery looks normal. There are no scar marks in the periphery. अच्छा ठीक है इसके Thank you. वेलकम आपने ये देख लिया इस पेशेंट की फंडस को क्यों कर लिया नाउ व्हाट यू वांट टू डू आपने फंडस का एग्जामिनेशन तो कर लिया इसके बाद आप क्या सिस्टम के यूज करके कुछ और देखना चाहते हैं जी मैम, I want to do anterior segment examination, fellow eye examination, and systemic examination, intraocular pressure and gonioscopy. अच्छा अब मुझे इंटीरियर सेगमेंट के एग्जाम क्यों करना चाहते हैं इसके अंदर Yes, ma'am. I want to see neovascularization on the iris, and I want to see corneal hypoesthesia, corneal sensitivity as well. Dr. Ahmed, based on only the left eye, Intraocular pressure. if you are presented with only this left eye, ignore the right eye, only the left eye, still you want to do the gonioscopy and the IOP and look for the anterior for the neovascularization? Based on only the left eye. I can't comment without seeing the other eye. I am telling after seeing both eyes. Both eyes. Good. Okay. What are the your differential diagnosis? Let's say that you have only seen this left fundus. Only seeing the left fundus is this is diabetic retinopathy, diabetic retinopathy with hypertensive retinopathy and radiation retinopathy, ocular ischemic syndrome. तो end में रख सकते हैं. Why radiation retinopathy? Sir, I want to take complete history. After that, I can say that. Please justify me. Yourself. Please justify me why you have included radiation retinopathy in the differentials. Because there are microaneurysms as well, and macular reflex is dull. Are there any Cotomou spots or Cotomou spots like lesions or any Purshar retinopathy or Purshar like lesions? In right eye there are Cotomou spot, but in left eye there is no Cotomou. We are talking only on the left eye now. Right, sir. You have to give differentials for the left eye only. सर इसमें सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एक्लुजन भी मैं रखूंगा डिफरेंशियल में क्योंकि मुझे येलोविश ओपेक रेटिना मिल रहा है सुपीरियर इंफीरियर आर्केड में supro inferior arcade you mean to say here? Yes sir, सुपीरियर आर्केड और इंफीरियर आर्केड के लॉन्ग सर येलोविश ओपेक रेटिना मुझे मिल रहा है इसलिए सर मैंने वो CRAO भी रखा है डिफरेंशियल बिल्कुल ठीक है okay good so now next we are presenting with the fundus fluorescein angiography of these both eyes. These are the early frames and these are the late frames. Can anyone comment on these fundus fluorescein angiograms? Because sometimes only fundus fluorescein angiogram is also kept in the talks. Dr. Amna, I am unmuting you. Hello, Assalamu alaikum. Can you hear me all? Yes. We can hear you. Kindly comment on the fundus fluorescein angiograms. Okay. So, in fundus angiogram, there is a mask, there is hypofluorescence that is along the lower arcade. Okay, Dr. Amna, sorry to interrupt, Dr. Amna. ये आपके पास fundus fluorescein angiogram है ना तो kindly start it as you are appearing in talks the eye which eye it is a printout or what it is so please kindly इसको describe करें first suppose you are presented with this series of angiograms first describe this one then this one then this one and then and this which one. eye it is okay so as this is the now I'm describing the first one. Okay. The first one. This is the right eye because the disc is on this right side, and this
the phase is that arteries are filled and veins are not still filled, so I'll say that's an arterial phase. And on this, there is a hypofluorescent patch in the center, not really in the center, but along the inferior arcade. That is probably showing the masking. That can be due to anything, a hemorrhage or anything that is masking the underlying fluorescence, retinal fluorescence. Very good, very good. On the next frame, this is arteriovenous phase, and I can see there is a leaking of from there is hypofluorescence. Along with the hypofluorescence, there is a patches of hypofluorescence. Maybe these are the leakages from the vessels. Okay. And डॉक्टर आमना, आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ये तो आपने बहुत अच्छा बता दिया कि आप इसको ऐसे कह सकती हैं कि एक स्पाइडर वेब फॉर्म, आई कैन सी अ स्पाइडर वेब फॉर्म लीजन व्हिच इज लीकिंग फ्रॉम द वेसल, डिफ्यूज लीकिंग फ्रॉम द वेसल, hyperfluorescence which is diffuse leaking from the vessel. तो आप इसको कैसे फिर बाद में डिस्क्राइब करेंगे? What is this? I think this is a masking effect. This is some thing that is pre-retinal, that is including the. Very good. ठीक है, तो आप इसको अपनी पूरा पैराग्राफ की फॉर्म में जैसे आप बता रही हो ना, आप इसको दोबारा बताओ, सबको पता चले जाके। रिफ्रेश करके आप इसको बताएं ना, जैसे एग्जाम में हम बहुत अच्छा सा करके बताते हैं। Okay, along the inferior arcade, there is these are the spider-like hyperfluorescence patches, which are probably from leaking from the vessel, and along with these, there is a hypofluorescent area above that is probably due to a pre-retinal hemorrhage that is masking the underlying fluorescence. ठीक है, जबरदस्त, वेरी गुड। अच्छा, अगला फेज। Agla phase, maybe there is a diffuse. This is a late phase now, and the fluorescence is late phase why late phase? आप सिंपल एक लैंडमार्क है जिसको आप बता सकती हो, वो बताओ। Just staining of the disc. ठीक है, आगे। And the fluorescence also is decreasing. The fluorescence in the arteries and veins are also decreasing, and there's a staining of the disc, so that's a late phase. And in this late phase, the fluorescence that is due to the leakage from the vessels is increasing, and is becoming more diffuse. तो आपने ये बता दिया कि that in इस phase के अंदर the leakage from the lesion is more diffuse and confluent. So ये later stages of the fundus fluorescence angiogram के ऊपर जा रहा है। ठीक है, आपकी डॉक्टर आमना डिस्क्रिप्शन बहुत बहुत अच्छी है। And what about the last picture? So in the last picture, this is the left eye, in which this is also a late phase, and there are few microaneurysm along the superior vascular arcade. There's small dilatations of the fluorescence. That's it. No. Fundus fluorescence angiogram पे microaneurysm का word आप ना करें, आप ये करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कोरिलेट। मैंने इसलिए ये फंडस पिक्चर और एंजियोग्राम साथ साथ लगाए ताकि आप कोरिलेट कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि जो फंडस पिक्चर है उसमें 1, 2, 3 and 4 माइक्रोनिज्म्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। आप इन्हीं कोरिस्पोंडिंग पॉइंट्स पे देखें तो यहाँ पे हाइपोफ्लोरेसेंस है, मींस कि these are thrombosed microorganisms, these are not leaking. ओके, राइट। यहाँ पे आप देखें कि 1, 2 और ये 3, ये तो थ्रोम्बोस्ड हो गए। उसके बाद आप देखें यहाँ पे एक हाइपर फ्लोरेसेंट एरिया है, एरिया कहना चाहिए या एक स्पॉट कहना चाहिए, ठीक है। देयर इज अ हाइपर फ्लोरेसेंट स्पॉट, लेकिन क्लिनिकल पिक्चर में आप देखें तो वहां पे आपको माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं नजर आ रहा। सो हियर कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी के क्लिनिक। आपने कैंसकी में और टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होगा कि फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राम reveals more hyperfluorescent spots that are corresponding to microorganisms as visible clinically. तो अब आपको क्लिनिकली 4 आए थे, लेकिन आपका फंडस जो एंजियोग्राम है वो ज्यादा बता रहा है। एक देखिए यहाँ पे आपका एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। These are all hyperfluorescent spots and most likely they are microaneurysms which are not visible on fundus picture. Yes sir. Okay. Okay, very good description. Okay, next slide है हमारे पास ये वाली।
और इस पे बहुत एक्सपेंसिव वाइवा होता है. सो आईफोन प्रो जो है, अब मुझे उनका नाम नहीं पता. आई एम अनम्यूटिंग आईफोन प्रो. सर ये मैं ही हूँ वलीद सर. जी सर. अच्छा वलीद है आप, ठीक है. सो मैं ये हुआवी Y9 को फिर अनम्यूट ठीक करता है सर. थैंक यू. हूँ. ओके, हुआवी Y9. हुआवी Y9 आई थिंक ये डॉक्टर अली है. ओके, नो, ओके, डॉक्टर अनम. Assalamualaikum. Can you hear me all? Yes, Dr. Anam, please describe this wondrous picture. Okay. This is the colored fundus photograph of the left eye of the patient, showing the disc, macula, and the inferior and superior temporal vascular arcades. Okay. The disc is hyperemic, showing distinct margins, pinkish yellow in color. The cupping is it's a very small CD ratio, vertical CD ratio 0.1, 0.2. Carry on, please. Can you hear? Yes, I am hearing. I am hearing. I am just listening to you. You please carry on. Pinkish yellow in color. Disc. There are no suspicious vessels on the disc. The there is no peripapillary atrophy. Yes. There is commenting on the vascular arcades. There is tortuosity Very of good. the vessels. Very good. Segmentation of the veins, and the flame-shaped hemorrhage on the inferior vascular arcades, and multiple hemorrhages, diffuse hemorrhages, dot blot hemorrhages diffusely on the posterior pole, superior and inferior both. अनम, And there डॉक्टर are अनम, hard exudates. अच्छा आप थोड़ा सा, मैं आपको इसमें इस वजह से स्टॉप कर रही हूँ कि इसके वेसल्स में इतनी ज्यादा फाइंडिंग्स हैं अभी कि अभी आप अगर हेमरेजेस और डॉट ब्लॉट हेमरेजेस हैं जो भी हैं, या एक्सुडेशन जिस भी पैटर्न में, अगर आप ना जाके पहले वेस्कुलर आर्केट को सुपीरियरली इंफीरियरली पहले पूरा उसको जो है ना डिस्क्राइब करो, क्योंकि इसमें फाइंडिंग्स बहुत ज्यादा है. आप पहले एक पैरामीटर को पकड़ो, ठीक है, जैसे आपने वेस्कुलर आर्केट्स को पकड़ लिया या डिस्क को, और पहले उसको थ्रू आउट पूरा करो, फिर दूसरी चीजों पे जाओ. इस तरह आप फाइंडिंग मिस करती जाओगी. ठीक है. अच्छा, देर जी 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 सर. जी जी. कैरी ऑन यार, बताओ. There is venous segmentation. There are flame-shaped hemorrhages. There are multiple aneurysms on the superior and inferior vascular arcades. AV nipping is present along the inferior vascular arcade, and ठीक है, वेरी गुड यार, है भी निपिंग आगे. should I go ahead? Yes, yes, There is one finding still left in the vessels. Arteriolar. If you can concentrate on this, on the lumen of this vessel. Yeah. There is copper wiring. Yes. So अनम, इसकी जो इसकी वेस्कुलर पिक्चर है, ये आपको क्या बता रही है कि इसमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन को एग्जिस्ट कर रही है ना? Yes. The findings on the findings बिल्कुल ऐसा है. तो फिर आपने, और जो मुझे बताओ कि आप सेगमेंटेशन जो है वो आपको किस पॉइंट पे मिल रही है, जो आप सेगमेंटेशन कह रही है? Madam, Dr. Fatma, this is on the inferior vascular arcade. अगर देखें तो what is the segmentation or bleeding? Basically, this is not segmentation. This is increase in the vascular caliber
और ये भी हाइपोक्सिया की वजह से हुई है। सो आप इसको सेगमेंटेशन नहीं कहोगे, आप ये कहोगे कि देयर इज डायलेशन ऑफ द इंफीरियर वेन, या आप ये कह सकते हैं कि डायलेट हुई भी है या उसका वेस्कुलर कैलिबर ज्यादा हुई है। तो ये सेगमेंटेशन नहीं है। और आपने एक बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें बतानी थी कि दैट अलोंग द इंफीरियर वेस्कुलर आर्केड, जो वीनस आर्केड है, उसके ऊपर एक बहुत कॉन्स्पिकुअस हेमरेज पड़ा हुआ है अलोंग द पाथ ऑफ द वेन, वो भी मिस Yes. किया। ठीक है। और जब आपने एट्रियोवेनस स्निपिंग बतानी है ना, तो वो किस किस पॉइंट के ऊपर, और जैसे ही आपने एट्रियोवेनस स्निपिंग देखी, आपका उधर ही क्लिक कर देना चाहिए कि डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन एंड कोएग्जिस्टिंग, तो आर्टरीज का क्या हाल है। तो आपने ये देखना होगा कि क्या कहीं पे मुझे कॉपर वायरिंग मिल रही है। एक इतनी बड़ी वायर का जो है कैलिबर कितना छोटा हुआ है और वो कॉपर वायरिंग है और वो अटेन्यूएट हुई है, तो आप उसको भी हाईलाइट करेंगे। Exactly. ठीक है। और फिर जब डिस्क की सरफेस से, अच्छा, तो हाँ हाँ, बताओ। ये मैडम ये जो बताना है कि एवी निपिंग है, एवी निपिंग तो हम एग्जैक्टली हम कैसे, मतलब जैसे अगर किस पॉइंट पे है तो आप ये बता सकते हैं जैसे अलोंग द इंफ्रोटेम्पोरल, अलोंग द इंफ्रोटेम्पोरल आर्केड, ठीक है, एंड देयर इज स्टिल कॉपर वायरिंग अलोंग इन सुपीरियरली, सुपीरियरली जो है ना, ये सारी ब्रांचेस के अंदर ये कॉपर वायरिंग हुई भी है, वेस्कुलर अटेन्यूएशन या आर्टेरियोलर अटेन्यूएशन हुई भी है। ठीक है, यहाँ पे आपकी वेसल्स की डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होती है। नाउ रेस्ट ऑफ द अब आप क्या है, करो, अब ये जो बाकी हेमरेजेस रह गए हैं, कॉटन स्पॉट है, जो भी है, अब इसको डिस्क्राइब करो। एक एक कंपोनेंट को ना एक टाइम के ऊपर करो। Okay. There are diffuse hard exudates along the in the macular area. Mainly, there is diffuse dot blot hemorrhages over the inferior and superior vascular arcades, multiple hemorrhages, and there are hard exudates more on the superior vascular, along the superior vascular arcade, superiorly in the macular area. So एक किसी एक जगह पे, as you were saying that the hard exudates are more concentrated in the center, hard exudate center in the macular area, there is a big hard exudate. Okay, so you can describe it more well, like there is a concentration of the hard exudates more along the superior arcade than in the inferior arcade, and there are three confluent large hard exudates in the macular area. तो आप इसको इस तरह करके बताओ। ठीक है। अब आप हेमरेजेस की कैसे डिस्क्रिप्शन देंगी, वो आपको किस तरह की लग रही है? Hemorrhages, there are flame shaped dot blot hemorrhages more on the superior, superior to the disc and along the superior vascular arcade. ठीक है। And there is a big hemorrhage present along the inferior vascular arcade, along with other small. The hemorrhage which is present along the inferior vascular arcade, what type of hemorrhage it is? What is the anatomical location which you get to know about the anatomical? Can you guess the anatomical location of this hemorrhage? Pre-retinal. No, the hemorrhage which is present along the inferior vascular arcade, ये hemorrhage की anatomic level क्या है? ये either it is pre-retinal or it is intraretinal. It seems intraretinal. डॉक्टर अनम, आपने जो भी बात बतानी है ना, देखो मैंने आपसे ये बात इसलिए पूछी है कि इससे एग्जामिनर ने आपकी फाइंडिंग भी कंफर्म करनी है और आपका कंसेप्ट भी चेक करना है। देखो ये है एक प्री रेटिनल हेमरेज, जिसके ऊपर से आपको कोई वेसल पास करती हुई नजर छोटी नहीं आ रही। तो जब आप फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राम करोगे तो यही वाला हेमरेज क्या बन जाएगा, ब्लॉकेज या मास्किंग। तो आपने एग्जामिनर को सेफ साइड पे कहना है कि सर बिकॉज देयर इज नो वेसल पासिंग ऑन द सरफेस ऑफ दिस हेमरेज, सो दिस नॉट सीम्स। अब वेसल नहीं है तो ये प्री रेटिनल हेमरेज है, दैट्स क्लियर कट। तो आपने उसको ये बता दिया। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था। अच्छा, एक पॉइंट जो है ना, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी नोट किया और अब इस सेशन में भी नोट किया है कि प्लीज डोंट यूज द वर्ड्स आई थिंक और प्रोबेबल और सीम्स टू बी और लाइकली। ठीक है ना, इसमें इट इज साइंस, इसमें एक चीज है या नहीं है। ठीक है ना, इसमें दरमियान का कोई रास्ता नहीं। अब
आपको अगर प्री रेटिनल लग रहा है आप प्री रेटिनल बोलें, अगर आपको justify करें। इंट्रा रेटिनल लग रहा है इंट्रा रेटिनल बोलें, ठीक है। आपको जो जो सर फाइंडिंग्स मिल मुझे रही हैं फर्स्ट टाइम प्री रेटिनल लगा, सॉरी, तो हाँ, प्री तो रेटिनल प्री, है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आप कहेंगे ये प्री रेटिनल है, उसको जस्टिफाई करें, इसके ऊपर से वेसल नहीं गुजरी बल्कि वेसल उसके नीचे से गुजरी है, हाइड हो रही है, ठीक है। सो इसमें सीम्स टू बी, और इस तरह के वर्ड्स नहीं बोलने, ठीक है, उससे इंप्रेशन आपका खराब होगा। ठीक। ओके, आई थिंक दिस पिक्चर इज कंप्लीट। आई एम नॉट गोइंग इनटू द वाइवा क्वेश्चंस, वो हम एंड पे जाएंगे। अभी आप जो हमारा जो एम है दैट इज ओनली हाउ टू डिस्क्राइब द पिक्चर। Okay, a new participant has joined us, Dr. Fatma. Welcome, Dr. Fatma. I am unmuting you. Please describe this picture. Hello, Dr. Fatma, can you hear us? Okay, so anyone of you would like to describe this picture? Okay, Dr. Waleed. अस्सलाम वालेकुम सर। जी Well, सर, सर इस पिक्चर में तो सर it's not clear whether this is the left or the right eye. uh, Uh, okay, whatever you are seeing, please comment on that. Okay, sir. Whatever findings you can appreciate. जी सर। Sir, this is a color fundus photograph. And जिस तरह मैडम ने बताया था कि the vertical cup to disc ratio, because there are a lot of new vessels, suspicious new vessels on the disc, I cannot comment on the vertical cup to disc ratio because it's not clear. The Okay. size of the disc is normal. The color of the disc is normal, and the margins of the disc are regular. Okay. The neuroretinal rims is healthy, and regarding the vessels, the vessels are dilated, and इसमें सर अच्छा Veins या arteries, ये भी आपने बताने हैं. Okay, sir. Thank you. Sir, the veins seem to be dilated. Okay. Veins. Okay. Acha. And on the inferior aspect, there is a frond of new vessel emerging from the inferior aspect of the disc, and on the inferior retina, there seems like laser marks. Okay. Sir, I cannot comment on anything else. I'm finding it difficult. Yes. Okay. What is the size of new vessels? Size of new vessels पे comment करें. कितना बड़ा फ्रॉन्ट है या कितने डिस्क डायमीटर्स हैं, उसकी Sir, लोकेशन क्या है? जी sir. Sir, the size of the new vessels, it is almost 2 disc diameters, about 2 disc diameters, and it is on the inferior aspect of the disc. Okay. And Inferior to the disc. good. ठीक है. ठीक है. So CTCD जो है, it's a clear case of proliferative diabetic retinopathy. Okay. जी sir. And आपने इस पे कमेंट, ये आपने लेजर मार्क्स कह दिए, ठीक है. So this is a fundus picture. ठीक है, उसमें ये laterality नहीं appreciate हो रही. On the disc, the disc is normal. It is a pinkish yellow colored disc. The vertical CD ratio cannot be appreciated due to the dense new vessels.
which are present on the disc as well as in the periphery area and also extending into the inferiorly. Okay? There are peripheral laser marks and in the vessels the veins are dilated. ठीक है, अब ये क्या चीज है, वेन्स के अंदर ये क्या चीज है? सर ये it seems like this is box cutting there, segmentation. सेगमेंटेशन ऐसी नहीं होती है. अच्छा सर, जी सर. एनीवन की ये क्या चीज है? लूपिंग सर. नो इट्स नॉट लूपिंग. लूपिंग तो एक लूप होगा ना. यस सर. ठीक है. ओके, क्लियर, दिस पिक्चर इज क्लियर. इसको डिस्क्रिप्शन तो इजी है, क्लियर कट केस है. ओके, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर स्लाइड. Okay, Assalamu alaikum, Dr. Fatma. Can you hear me? Hello? Yes. Yes, Welcome I to can the, hear you. yes, welcome to the session. Thank you. Please describe this picture. This is the fundus picture of the right eye, I think. Clearly showing a pale disc in which the CD ratio cannot be appreciated. There's a tuft of new vessels present on the disc, along with 3 very large pre-retinal hemorrhages present along the superior vascular arcade and between the superior and the inferior vascular arcade, measuring 3 to 4 disc diameters, covering the macular area. And there are a few scattered small dot and blot hemorrhages in the area between the vascular arcades. Okay, as you joined late, you missed that whenever you are describing a fundus picture, you have to first comment all the points about the optic disc, then all the points about the vessels, and then yes, and then all the findings which are remaining in the fundus, be the hemorrhage or hard exudates or cortical spots or areas of ischemia or the laser marks. ठीक है? So आपने अपने आप को डिवाइड कर लें कि ऑप्टिक डिस्क पे, वेसल्स पे, फिर बाकी जो फाइंडिंग्स हैं उसके ऊपर होंगे. ओके. सर डॉक्टर विकास, क्वेश्चन है मेरा. जी जी. सर मैंने ये पूछना था कि मैं इसी तरह ही डिस्क्राइब करता आ रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो मोस्ट ऑब्वियस फाइंडिंग है ना, तो वहां से आप स्टार्ट लें, उसके बाद आप जो है ना एसोसिएटेड फाइंडिंग पे हैं, फिर नॉर्मल फाइंडिंग पे हैं. तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? देखिए, अगर कोई इतनी ऑब्वियस फाइंडिंग नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल सीडी रेशियो है, अगर वो थोड़ी सी 0.4 की है या 0.3 की है, नॉर्मल है, ठीक है, तो आप उसको कर सकते हैं ओमिट. लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपने कोई ऐसी फाइंडिंग मिस नहीं करनी जो कि उसके साथ कोरिलेट कर रही है. राइट सर. ठीक है. फॉर एग्जांपल एक बंदे ने सर नॉर्मल बताना शुरू किया, उसने कहा जी एंटीरियर सेगमेंट से उसने लॉन्ग केस में स्टार्ट किया, उसने कहा लिड्स एंड लैशेस आर नॉर्मल, कंजक्टिवा इज नॉर्मल. देखिए, उसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. अगर एग्जामिनर ने वो सुननी होगी तो वो आपको नहीं रोकेगा. अगर आपका एग्जामिनर कहता है कि जस्ट डिस्क्राइब द पॉजिटिव फाइंडिंग्स जो कोरिलेट कर रही हैं, तो फिर आप सिर्फ पॉजिटिव फाइंडिंग्स बता दें. सही है, वरना नॉर्मल सारी बतानी है सर. जी, इसमें एग्जामिनर जो है ना वो आपको वो कर लेगा, टेलर कर लेगा कि इफ ही वांट्स टू यू टू डिस्क्राइब ऑल द फाइंडिंग्स, तो फिर आप ऑब्वियसली आप सारी बताओगे. लेकिन अगर एग्जामिनर समझता है कि सिर्फ आपने पॉजिटिव फाइंडिंग्स बतानी है, तो जस्ट ही विल टेल यू कि सिर्फ पॉजिटिव फाइंडिंग्स बताओ. राइट सर, थैंक यू सर. ठीक है.
ओके, एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये डॉक्टर अहमद ने सर अभी जो क्वेश्चन पूछा ना सर, जी ये एक एक्सपीरियंस सर एक कैंडिडेट ने शेयर किया हुआ था कि वो लॉन्ग केस में वो डिस्क्राइब कर रहे थे, जी तो जी उन्होंने एंटीरियर सेगमेंट से जब स्टार्ट किया तो उन्होंने कह दिया कि मतलब पेशेंट हैज गॉट ड्राई आई, और उससे मतलब वो जब कंटिन्यू कर रहे थे तो एग्जामिनर ने उसको उसी ड्राई आई के ऊपर रोक दिया और आगे नहीं जाने दिया ना सर। जी जी तो अगर सर अगर लॉन्ग केस हो तो सर इज इट अ गुड आइडिया टू आस्क द एग्जामिनर के सर वेदर आई शुड स्टार्ट my findings from the case from the positive findings or should I go from anterior to posterior segment? इसमें अगर हम पूछ, क्योंकि सर अगर पता तो नहीं चलता अगर सर ने अगर एग्जामिनर ने हमें खुद नहीं कहा और हम शुरू हो जाए एंटीरियर सेगमेंट से देखिए, फाइंडिंग। आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा मेरा मैंने भी पूछा, ठीक है, कि सर मैं सिर्फ पॉजिटिव फाइंडिंग्स बताऊं या मैं सारी फाइंडिंग्स बताऊं कि अपना जो नॉर्मल है उनको भी बताऊं। तो माय एग्जामिनर सेड कि नहीं, ठीक है, आपने सिर्फ पॉजिटिव फाइंडिंग्स बतानी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिन कैंडिडेट का आप कह रहे हैं कि उन्होंने ड्राई आई पे शुरू किया और वो ड्राई आई पे ही उनको रोक दिया, तो मे बी उस पेशेंट में ड्राई आई ना हो और कैंडिडेट ने बता दिया कि जी पेशेंट को ड्राई आई है। जब आप कोई ऐसी फाइंडिंग बताते हो विच इज नॉट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर पेशेंट या जो केस से रेलिवेंट नहीं होती, तो एग्जामिनर आपको वहीं पे रोक लेगा। एग्जामिनर फिर आगे वाइवा नहीं लेगा, एग्जामिनर जो है ना आपको उसी में उलझा के रखेगा। सो आपने प्रिसाइज रहना है, फाइंडिंग मिस भी नहीं करनी, ना डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एग्जामिनेशन के अंदर, और उसको कोरिलेट भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक दफा प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी का एडवांस डायबिटिक आई डिजीज का केस आया था। आई मिस्ड न्यू वेसल्स ऑन द आइरिस। उसको एक आंख में एनवीआईसी एंड आई मिस्ड दैट एंड द एग्जामिनर वाज टोटली अनॉयड एंड ही जो उसने पहला क्वेश्चन मेरे से वाइवा में पूछा, उसने पूछा कि जी ये जो हम फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं। सो एंड उस वक्त मुझे पता चल गया कि मैंने कोई ऐसी फाइंडिंग मिस की है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस एंड आई एम अनएबल टू पिक दैट। सो एग्जामिनर आपसे कोई ऐसी बात पूछे या कोई बेसिक क्वेश्चन करे, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने कोई रेलिवेंट फाइंडिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द केस वो आपने कोई मिस की है। अगर आपका हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन इज परफेक्टली ऑल राइट, आपने उसको वो पेशेंट के साथ अच्छी तरीके से बात की है, आपने उसकी कोई फाइंडिंग हिस्ट्री के अंदर और एग्जामिनेशन के अंदर मिस नहीं की, आपने अपना डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा रखा है, तो आप पास हो जाते हो। वाइवा से पहले आप पास या फेल हो चुके होते हो। दिस इज व्हाट आई फील। 30 मिनट्स के एंड पे जो आपको दिया गया है फोटो फॉर जिसमें आपने हिस्ट्री और एग्जामिनेशन उसका पेशेंट का करना है, उसके एंड पे यू आर पास और फेल। जो बाकी वाइवा होता है वो जस्ट मेरा ख्याल है कि वो टाइम गुजारने के लिए या आपको आपसे बस ऐसे बातचीत करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसलिए आपने अपनी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस करना है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, we will move on to the next slide now. So, Dr. Mateen. Dr. Mateen. Yes, sir. Yes, sir. Yes, please describe this picture. Sir, it's an optical coherence tomograph of the eye, Yes. sh showing the uh, sir, it's showing edema over Hmm. the macular area, Hmm. and
जो आपको नजर आ रहा है इसके अंदर, आप पहले वो बता दें। Sir, I'd better we continue with some fundus photograph. It's difficult for me to appreciate. नहीं, not this. This will also come in your examination. Okay. Any other? I think Dr. Ahmed was willing to answer this. Dr. Ahmed. Okay, Dr. Amna. Dr. Amna has raised her hand. So, Dr. Amna, please describe this picture. It is the OCT, and as I can see that the RNFL layer is increasing on one side, so probably disc is on that side, and which is the left side of the patient. So it from that I can predict that it is the OCT of the left eye, and the foveal contour is lost, and they are it's completely lost, and in the foveal area there are in the neurosensory retina there are many hypolucent spaces and the hyporeflective spaces which are separated by the septas, hyperreflective septas, and so this is probably a cystoid macular edema. Well, ISOS junction and the RPE, I can see that they are normal, and that's it. Okay. Maybe I don't know. Good, very good description. अच्छा डॉक्टर आमना, आपने डिस्क्राइब बहुत अच्छा किया है, लेकिन आपने इसमें इसका डायग्नोसिस साथ में बताया। Cystoid macular edema. नहीं, जब आप डिस्क्राइब कर रही हैं ना, तो फिर आप उसका ना उसके साथ ही डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका ना बताएं डायग्नोसिस। आपने डिस्क्राइब बहुत अच्छा किया कि आपने विट्रस से शुरू करके नीचे ISOS जंक्शन, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम से लेके कोरियोकेपिलैरिस आपने मिस कर दिया, कोरियोकेपिलैरिस की शैडोज आ रहे हैं, दे आर हैवी, वहां तक आपने बहुत अच्छा बताया। बीच में कहीं पे भी ना डायग्नोसिस पे जंप ना करें। लॉन्ग केस, सॉरी शॉर्ट केस और उसमें लॉन्ग केस में तो ऑब्वियसली आप साथ ही बताएंगे, डायग्नोसिस पे जंप ना करें। आपने बताया बहुत अच्छा। अब आप बताएं, अब आपसे एग्जामिनर का एक क्वेश्चन खत्म करनी है ना, इसका मतलब है कि एंड ऑफ द जो लॉन्ग शॉर्ट केस का उसका टोक्स का टाइम है, वो आपसे मजीद मुश्किल क्वेश्चन पूछेगा और आपको ये लगेगा कि पता नहीं वो तो स्टेशन ठीक नहीं हुआ था। अब आप बताएं दैट बेस्ड अपॉन दिस OCT पिक्चर व्हाट आर योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस या डायग्नोसिस? macular edema, cystoid macular edema. ओके, सिस्टॉइड, ठीक है, ये क्लियर कट सिस्टॉइड मैक्युलर एडिमा है ना इस वाले का। अच्छा, तो आप इस व्हाट आर योर इन्वेस्टिगेशंस और मोर ओपनली के जिसमें सारी ऑप्शंस आएंगी, हाउ विल यू प्रोसीड सच पेशेंट? I would say I will take the history if there is the history of cataract extraction or recently or any surgery recently in 6 to 10 weeks. And I will ask about his hypertension and diabetic status, and I would like to see his fundus for any correlative findings of diabetic retinopathy or any other finding that can cause any other retinal findings that can cause that edema. So you can you tell me the gross classification of the reason of cystoid macular edema? I'm not going into diagnosis, I just want the reasons, like they can be infective causes, there can be post-op causes, surgical causes, इस तरह आप क्या आप उसको classify कर सकती हैं? It can be after intervention, that is surgical causes, or after like surgery, or after PRP, and it can be from the vascular disorders that Very is good. diabetic. No, I don't need the diagnosis. I don't need the diagnosis. Okay. I just need the categories which can result into such picture. Vascular causes, or they can be from the retinal disease itself, like RP or something, and it can be from what else can cause? It can be from the systemic causes. Okay. Systemic illnesses like fluid, they're causing fluid retention. They can also result into this edema, and they can be infective or inflammatory causes. Very good. And some hereditary fundus dystrophies. Hereditary fundus dystrophy, right? Okay.
So can you name okay, उसको भी छोड़ दे, अभी स्टडीज पे नहीं आते, उसको रहने दे स्टडीज वाले क्वेश्चन को। आप मुझे ये बताएं कि सिंपल आप इस तरह के ये आपके, चलिए मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ। ये पेशेंट आपके पास आया 6/18 विजन के साथ और इस ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राम पिक्चर के साथ, एंड द पेशेंट हैड हिज कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन 3 weeks back. Right. And he is complaining that after cataract extraction he was experiencing a good vision, ठीक है, but after some days his vision deteriorated, and now this is the OCT picture. 6/18 is the vision, and how will you proceed in such picture? Your patient is non-diabetic, non-hypertensive, 60 years old. Okay, first of all, I'll counsel him and I'll ask him that if he's taking any ask him that about his medicines, if he's taking any medicine that is aggravating the condition, like any prostaglandin or anything that is further deteriorating the condition. I'll stop that Will you medicine. ask him about the surgery? Some point about the surgery? Yes, about the Or complication of the surgery. If the surgery was तो आप पेशेंट complicated. से कैसे पूछेंगे डॉक्टर अन्ना? यही तो हिस्ट्री की प्रैक्टिस है। जो आपका पेशेंट Duration of the बैठा surgery. हुआ है कि जिसने 10वीं में पास नहीं की हुई, आप उससे क्या कहेंगे? कि कितनी देर लगी थी आपको? हाँ, आपका ऑपरेशन कितना लंबा चला था? कितना लंबा चला था? ठीक है। Okay. So, आपका जो ऑपरेशन डला था कितना लंबा चला था, और उसके अलावा एक क्वेश्चन और रहता है। और आपको लेंस मतलब हम तो जनरली ये पूछते हैं कि अंदर से डला था या बाहर से डला, मतलब यानी आप असेस कर लें ना, आप देखें मेरी बात सुने, आप असेस कर लें कि उसकी कॉम्प्लिकेशन जो हुई थी वो किस लेवल की हुई थी, वो ट्रेक्टमी हुई थी तो कैसे हुई थी, और जो उसको लेंस डला था वो क्या उसकी प्राइमरी सर्जरी में डला था, क्या उसकी ये लेंस जो बाद में सेकेंडरी सर्जरी में डला है, क्या उसकी सेकेंडरी सर्जरी ने उसका इतना इंटरलेविंग सर्च करवाया है व्हिच हैज रिजल्टेड इन दिस। क्योंकि जब आप बार बार पेशेंट का इंटरवीन करोगे इंटीरियर सेगमेंट से, तो सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ट्रिकल डाउन करेंगे ना नीचे की तरफ, और क्या उसका रेंट हुआ था उस सर्जरी के दौरान। तो ये कितनी ज्यादा चीजें हैं जो आपको क्या दे देंगी, एक क्लू दे देंगी। ठीक है, अब आपने पेशेंट की काउंसलिंग क्या करनी है इसके अंदर। हाँ, अच्छा, इसमें एक पॉइंट है, सॉरी टू इंटरप्ट, एक पॉइंट लाजमी कि सर्जरी एक ही हुई थी या एक से ज्यादा हुई थी, दोनों सर्जरीज या 3 सर्जरीज के दरमियान में कितना इंटरवल था, और इमीडिएट पोस्ट ऑफ उसकी क्या सिम्टम्स थे। मैंने उनको ये बताया कि क्या कितनी इमीडिएट पोस्ट ऑफ नेक्स्ट डे पे उसकी विजन कितनी थी, उसके रेडनेस क्या था, या उसके सिम्टम्स क्या थे। तो इट विल गिव यू एन आइडिया कि उसकी कॉम्प्लिकेशन हुई थी या नहीं हुई थी और किस लेवल की। और एक मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा यहाँ पे सबको एक चीज बताती जाऊँ कि जैसे अभी पिक्चर पे सिस्टोइड मैक्युलर एडीमा बहुत ज्यादा डिस्कस हो चुका है, काइंडली टेक अ पेज और राइट डाउन कर लें कि अगर आपको सीएमओ का लॉन्ग केस आता है और उसके अंदर आप जब हिस्ट्री लेते हैं तो ये जितने भी ये जो सवाल है ना कि कितनी हुई थी, कब हुई थी, किस ड्यूरेशन पे हुई थी, पहले दिन पट्टी खुली थी तो नजर कैसी थी, डाली थी, पानी था, शीशा उसी वक्त पड़ा था, शीशा बाद में पड़ा था, ये सारे सवाल आपने पूछने हैं, एंड दीज क्वेश्चंस विल मेक द एग्जामिनर थिंक कि आपको सिस्टोइड मैक्युलर एडीमा कितना। एंड आई विल गिव यू अ क्लू, ये एक होमवर्क समझने आप कि देयर आर 9 हेडिंग्स जिसके अंदर ये जो कॉजेस ऑफ सिस्टोइड मैक्युलर एडीमा ये कैटेगराइज करते हैं हम। देयर आर 9 हेडिंग्स, तो वो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी सिस्टोइड मैक्युलर एडीमा का टॉपिक आएगा आई विल डिस्कस इट विद दैट, तो आप भी इसको सर्च करें एंड उसी के हिसाब से आपने हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चंस बनाने हैं, तो एग्जामिनर विल गेट एन आइडिया कि यू आर कॉम्पिटेंट इनफ टू गेट थ्रू। अच्छा डॉक्टर आमना, इसमें अब मेरा ट्रीटमेंट बस बता दें सिंपल, आप क्या करेंगे? सिंपल पहले पेशेंट को एग्जामिनेशन करेंगे, अगर देखिए कोई ऑब्वियस कॉज है उसका, जैसे कि कोई विट्रस विक नजर आ रही है या कोई ऐसा ऑब्वियस कॉज है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, तो पहले वो करेंगे। उसके बाद जनरली 90% कैसे रिमूव कर सकते हैं डॉक्टर आमना? यैक से या फिर डीएविट्रेक्टमी करके। ठीक है, जबरदस्त, आगे। उसके बाद हम देखेंगे उसको कि मोस्टली ये एनसेड और स्टीरॉयड देने से सेटल कर जाता है, तो पहले हम उसको एनसेड और स्टीरॉयड्स का ट्रायल देंगे और उसके बाद उसको फॉलो अप पे रखेंगे। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता स्टीरॉयड और एनसेड से, तो फिर हम उसको स्टीरॉयड इंट्राविट्रल दे सकते हैं या ओरल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स दे सकते हैं। उसके बाद अगर फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं करता तो फिर एंटी वेजेफ का एक ऑप्शन है हमारे पास, इंट्राविट्रल, और उसके बाद फिर एंड वाला ऑप्शन जो है वो डीएविट्रेक्टमी का है।
Sorry, posterior vitrectomy. Sorry, past planar vitrectomy. Sorry. तो आप ये कहेंगी कि एंड पे सर if it is a resistant cystoid macular edema which is not responding to the topical or intravitreal medication, then I will in the end after doing all the topical or intravitreal, then I will go for surgical intervention. ये आखिर की बात है बिल्कुल भी ट्रीटमेंट ठीक है जी thank you. Okay. Now the next slide is this. This is an you all know that this is an angiogram. I have put this slide here because I want to discuss certain points. If anyone can describe it quickly, just 1 minute. Please raise your hand. Whoever wants to describe it. Anyone? Just 1 minute. Okay, Dr. Amna again. Okay. Sir, this is an angiogram that is showing multiple areas of, there's a black multiple areas that are the pre-retinal hemorrhages, or there's a masking that causing the hypofluorescence, or maybe this is not masking actually, maybe this is a capillary dropout, because vessel is, I can see the vessel above that black area. So Okay. Okay, मैंने पहले भी कहा था कि maybe probable seems to be likely कि इस तरह के वर्ड नहीं यूज करने, ये शेकी वर्ड है, ठीक है? अच्छा, मैंने ये स्लाइड इसलिए रखी थी बिकॉज देखें ये हाइपोफ्लोरेसेंस के जो एरियाज है, बाकी तो आपने फाइंडिंग्स बता दी, हाइपोफ्लोरेसेंस हाइपर है और सारा कुछ, जो हाइपोफ्लोरेसेंस के एरियाज हैं इनको हम कैसे कह सकते हैं विदाउट लुकिंग एट द फंडस पिक्चर कि ये मास्किंग है और इज इट कैपिलरी ड्रॉप आउट? Important point याद रखें, if the area of hypofluorescence is bordered by vessels, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, ये vessels हैं, ये है, ठीक है, यहाँ पे है, if it is bordered by vessels then it is capillary dropout, and if it is not bordered by vessels then it is masking. हम अगर previous slide पे जाएं, sorry, हम अगर इस स्लाइड पे जाएं जो कि हमारी फर्स्ट स्लाइड थी, तो इसमें आप देखेंगे कि ये हेमरेज है और ये मास्क कर है बिकॉज यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं बना हुआ, इट इज नॉट बॉर्डर्ड बाय वेसल्स, ठीक है जी, ठीक है, तो ये दिस इज मास्किंग और ये आप क्लिनिकली कोरिलेट भी कर रहे हैं. बट अगर उस स्लाइड पे जाएं तो यहाँ पे इट इज एन एरिया ऑफ हाइपोफ्लोरेसेंस व्हिच इज बॉर्डर्ड बाय वेसल्स, तो ये भी आपको एक आइडिया दे सकता है, नंबर 1. नंबर 2, जहाँ पे भी इस्कीमिया होगा अगर वहां पे न्यू वेसल्स बनी हुई हैं तो फिर वो लीक करेंगी, तो यहाँ पे भी आप देखें कि जहां जहां हाइपोफ्लोरेसेंस है वहां पे न्यू वेसल्स लीक करती हुई आपको नजर आ रही है, लाइक दिस वन. ये स्लाइड मैंने जस्ट इसी पर्पस के लिए रखी थी कि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम मास्किंग कब कहेंगे और कैपिलरी ड्रॉप आउट कब कहेंगे. सर एक क्वेश्चन है सर, जो ऊपर एरिया है, एक एरिया आपने शो किया जिसके ऊपर एक हाइपोफ्लोरेसेंट का एरिया और उसके ऊपर एक वेसल भी जा रही है, ये वाला सर इसके साथ वाला नहीं सर, साथ वाला ये सर नीचे सर, नीचे थोड़ा सा, सॉरी, ये वाला, अरे बहुत बड़ा पैच है हाइपोफ्लोरेसेंस का और ऊपर एक वेसल चल रही है, ये वाली, ये वेसल आ रही है ऊपर ये पूरे हाइपोफ्लोरेसेंट एरिया में, ठीक है, तो हो सकता है कि ये वाली कैपिलरी अभी ना अपलोड हुई हो, तो ये तो सर ये ड्रॉप आउट है ना सर? हाँ, ये पूरा ड्रॉप आउट का एरिया, ठीक है सर, ये सारे ड्रॉप आउट के एरियाज हैं, ठीक है. ओके, नाउ अगर सेशन आई थिंक लंबा हो गया, लेकिन कुछ वाइवा क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट टाइम भी रह गए थे, तो क्विकली जो है ना वो we will go through them.
Anyone wants to answer? Please raise your hand. Sir, Assalamualaikum sir. वालेकुम सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, regarding the nature of disease, its different treatment options, its complications, its follow-ups, and I refer patient to physician and diabetologist for sugar control and for diet. Okay. And I will advise the patient to adopt the healthy lifestyle to stop the smoking. और ये सारा कुछ मैं उस वक्त बता रहा हूँ जब मैंने सारा हिस्ट्री ले ली हुई है, एग्जामिनेशन कर लिया हुआ है और इन्वेस्टिगेशन वो करवा ली हुई है, उसके बाद फिर मैं ट्रीटमेंट नहीं लिखा हुआ। ठीक है, गुड। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आपने सारा कुछ बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ विल यू डू पेन रिटन फोटोकॉगुलेशन? Yes, sir. Sir, I will counsel the patient about PRP, its complications, and I will tell him it's gonna happen in 2 to 3 sessions. And after I will put local anesthesia, and I will start after putting the contact lens. I will start clearly. And away from the disc, away from 500 micrometer, away from macula, away from nucleus, and I will first check. गुड, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर आप फ्रेज कर लें तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, कि पहले आपने बताना है कि फोटोकॉगुलेशन का मैं वो करूंगा, इन्फॉर्म कंसेंट वगैरह लूंगा और सारा कुछ करके, और फिर मैं ये इस तरह करूंगा। ठीक है, अच्छा। नंबर ऑफ बर्न्स आप कितने अप्लाई करेंगे? Sir, this depends upon the type of condition or severity. Mild or moderate or Good, severe. very good. Depends on the severity of the disease. Yes, sir. And second thing is also depends upon the patient threshold. How he acquires or how much it. So I will do in 2 to 3 sessions, and I will do 2500 sessions for mild NPDR, and for 2500 to 3500 for moderate, and 4500 or more for severe NPDR. But it also depends upon the patient adaptation about burns. Very good. Okay, this is the answer for this. That I will start from 1500 burns, and आपका आंसर भी ठीक है, it depends on the severity of the disease. ये 1500 burns से स्टार्ट करूंगा और माइल्ड पीडीआर में ये मॉडरेट में और सीवियर में। ठीक है, सो पीआरपी कैसे हेल्प करती है? एनी अदर कैंडिडेट? मैकेनिज्म क्या है पीआरपी का? किस तरह से न्यू वेसल्स को रोकती है या रिग्रेस करती है? ओके, डॉक्टर आमना। Sir, it decreases, it converts the dying tissue into the dead tissue. So the ischemic load is reduced, and the protection of the VEGF that is causing the formation of the new vessels that is reduced. ओके, वेरी गुड। एनी अदर मैकेनिज्म? आपका बिल्कुल ठीक है, इसके अलावा भी होता है? सर मुझे तो यही पता है, सॉरी, दैट्स व्हाट आई नो। ओके, गुड, वेरी गुड। इसमें सर मैकेनिज्म जो पीआरपी, सॉरी, गुड, ठीक है, ओके। इसका ये है कि अगर 532 नैनोमीटर यूज होगी
डिक्रीज कर देती है रेटिनल डिमांड को, वो जो आपने कहा कि हाइपॉक्सिक को एनॉक्सिक में कन्वर्ट करेगा, रिलीज ऑफ एंजियोजेनिक फैक्टर्स जाहिर है कम हो जाएंगे, और तीसरा जो है ना कि मैकेनिकल इन्वेशन के स्कार्स जहाँ पे बन जाते हैं ना वहां पे फिर न्यू वेसल जो है वो ग्रो नहीं होते। ओके, हाउ विल यू से कि आपने एक पेशेंट की पैरारेटिनल फोटोकोगुलेशन की है एंड इट इज सक्सेसफुल, क्या पैरामीटर्स हैं या क्या क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं जिसकी बेस पे आप कहेंगे? सर एक तो सर उसकी फाइंडिंग्स जो है रिड्यूस हो जाती है सर, वीनस ब्लीडिंग जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगी, इरमा रिड्यूस हो जाएगा, हेमरेज कम हो जाएंगे सर। उसके अलावा सर जो वेसल जो है उनकी टिप ब्लंटिंग हो जाएगी, गोस्ट वेसल्स अपीयर हो जाएंगी, डिस्क फेल हो जाएगी सर। वेरी वेरी गुड, ठीक है जी, ठीक है। ओके, क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, हाउ मच टाइम द PRP टेक्स टू अटेन इट्स इफेक्ट? जी डॉक्टर वलीद, you wanted to say something? Sir, I had some idea about the signs of regression, Yes. but the time for the PRP to take effect, sir, ये नहीं पता सर। ठीक है, आप आपके क्या थे आइडिया जो प्रीवियस क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं ना? यस सर, वो तो सर डॉक्टर अहमद ने बता दिया ना सर। चलिए ठीक हो गया। टाइम जो है इट टेक्स अबाउट 4 to 6 weeks. If it is a good PRP, so it takes about 4 to 6 weeks for these changes to appear. Okay, जी, Dr. Waleed, what are the type of lenses used for photocoagulation? सर इसमें मेनस्टर लेंस है हमारे पास, क्वाड स्फेरिक है, ठीक है, और इसमें सर आई फॉरगॉट अबाउट दैट, बट उसमें सर एक लेंस में जो है वो हमें वो स्पॉट साइज को एडजस्ट नहीं करना पड़ता, और दूसरे में सर हमारे पास जो स्पॉट साइज है वो आई कांट रिमेंबर दैट प्रॉपर्ली सर। अगर ठीक है, वो ये है कि गोल्डमैन 3 मिरर लेंस होता है, पेंट फंडोस्कोपिक लेंस होता है जिसमें हमें स्पॉट साइज को एडजस्ट करना है, बिकॉज इसकी 2 टाइम्स मैग्निफिकेशन है, तो इसमें हम फिर स्पॉट साइज जो मशीन पे रखेंगे वो 200 माइक्रॉन्स रखेंगे, और जो मेनस्टर है उसमें 1 टाइम है, तो इसमें हमें एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। How much spacing you have to keep between the spot sizes, between the spots? ये spot size लिखा गया, spots 1/, बिल्कुल ठीक है, 1 to 1.5 burns width apart. ओके, क्या क्या इंडिकेशंस हैं PRP की? ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई वांट कि सारा आप इसको गो थ्रू कर लें। Sir, indications of PRP are that if we have a high risk PDR, वेरी गुड, or if it is less than high risk PDR, but if it is early PDR, wrong में जिस तरह सर लिखा है ना सर, जी जी, if there is any new vessels on the disc or new vessels elsewhere, or if it is a severe NPDR, ठीक है, ठीक है, or if is it ischemic NPDR. Ischemic जो है when on FFA we have ischemia, when the FFA indicates ischemia, for that we Okay. can this is also one indication. तो वहाँ पर तो सर ये लिखा हुआ है कि I would consider scatter PRP for special cases if the patient is type 1 diabetic, patient का जो है कंट्रोल पुअर है, और या फेलो आई जो है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से ब्लाइंड हो चुका है, या फैमिली हिस्ट्री है ब्लाइंडनेस की डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से, या पेशेंट का कंप्लायंस पुअर है, या उसने पहले जो है कैटरेक्ट सर्जरी की हुई है, या प्रेगनेंसी है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर आमना, आप?
मैंने एक एक्चुअली बात पूछनी थी कि जैसे सर बुक में तो लिखा होता है कि पीआरपी के लिए अभी जैसा न्यू स्टडीज हैं उनमें तो ये है कि एंटी वेजेफ इज इक्विवेलेंट टू पीआर और पीआरपी, लेकिन हम तो अपने सेटअप के हिसाब से नहीं बताएंगे कि हमारे सेटअप में, क्योंकि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पेशेंट का फॉलोअप पुअर है, पेशेंट की कंप्लाइंस पुअर है, तो हमें तो जब भी न्यू वेसल नजर आएगी, हम मतलब जैसे जब जनरली हम अपनी प्रैक्टिस में ऐसे ही करते हैं कि जब भी न्यू वेसल्स होती हैं तो हम पीआरपी कर देते हैं, तो हम उन्हें इस हिसाब से बताएंगे कि हम उन्हें ये मतलब बुक के अकॉर्डिंगली बताएंगे। देखिए इसका ये क्वेश्चन आई थिंक ये थोड़ा सा अनक्लियर भी है कि इसमें हमने वो वाली इंडिकेशंस, वो कंडीशंस बतानी है जिसके अंदर पीआरपी रिक्वायर्ड होती है, लाइक वेरी सीवियर एनपीडीआर, क्योंकि एडीआरएस ने कहा कि लेजर जो है वो मॉडरेट विजुअल लॉस को कम करेगी, पीडीआर है, सीआरवीओ है, एनवीजी है, ठीक है ना, इस तरह। और डायबिटीज में कब करनी है? डायबिटीज में फिर हम आ जाएंगे प्रोटोकॉल एस पे, जिसमें और प्रोटोकॉल ये हमारी जो बाकी स्टडीज हैं कि अगर हाई रिस्क है तो और पेशेंट नहीं आ सकता या उसके फॉलो अप के इश्यूज हैं, तो यू कैन परफॉर्म ऑन द सेम डे। जिस तरह ये कैंसकी की जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर वो लिखा हुआ है उसमें कि इफ द पेशेंट इज हाई रिस्क और इवन इफ द पेशेंट इज having mild to moderate PDR and he is having follow-up issues या इसको कोई compliance का issue होगा तो हम उस वक्त भी कर सकते हैं। Yes sir, thank you. Welcome. Complications of PRP. So complications of PRP, they can be from the vitreous hemorrhages or from that choroidal detachment, and there can be so many. I mean, I just can't recall. But ओके इस क्वेश्चन का ये मकसद है, देखें क्वेश्चन को आपने आंसर ऐसे करना है एज इफ यू आर अ कंसल्टेंट, ठीक है जी सर। आप, ताकि एग्जामिनर को आइडिया हो कि आपको उस क्वेश्चन के बारे में एक ब्रॉड आइडिया है। अब देखें पीआरपी जो है उसकी अर्ली कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और लेट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो अगर आप ये कहें कि सर देयर आर अर्ली एंड लेट कॉम्प्लिकेशंस, तो एग्जामिनर जो है ना वो अटेंटिव भी हो जाएगा और उसका एक इंप्रेशन भी आपका एक अच्छा पड़ेगा कि यू नो द सब्जेक्ट, ठीक है। सो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आइरिस बर्न्स है, मैकुलर बर्न्स, रेटिनल टियर, हेमरेज हो गया, स्ट्राइड मैकुलर एडिमा हो गया, डिटैचमेंट हो गई, ग्लाकोमा हो गया। और जो लेट है उसके अंदर हमारे पास लॉस ऑफ विजुअल एक्विटी लाइंस बाय 1 to 2 लाइंस, बिकॉज जो डीआरएस स्टडी थी उसने कहा कि फोटोकोगुलेशन अगर आप नहीं ट्रीटमेंट करते तो ज्यादा विजुअल लॉस होगा और अगर फोटोकोगुलेट कर देते हैं तो कम विजुअल लॉस होगा। एंड दीज आर, ये बाकी की हैं, फील्ड इफेक्ट्स आ सकते हैं, नाइट विजन खराब होगी, कलर विजन खराब होगी, फ्रैक्शनल डिटैचमेंट हो सकती है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन सीआई, ठीक है। सो आपने आंसर ऐसे करना है कि देयर आर अर्ली एंड लेट कॉम्प्लिकेशंस, अर्ली ये वाली है, लेट ये वाली। राइट राइट ओके सॉरी anyone? Okay, I think it's a bit difficult question, so इसलिए आंसर ये है। Can you hear me? जी सर। अच्छा जी, सर इसमें वो वाला पॉइंट है कि अगर इफ देयर इज
coexisting PDR with DME, तो अगर हम yes. तो फिर आप पहले PRP करेंगे या पहले मैकुलर लेजर लगाएंगे? सर अगर PRP करेंगे तो सर इसमें PRP की वजह से तो सर वो मैकुलर एडीमा और भी वर्सन हो जाएगा ना सर? बिल्कुल ठीक है, तो सो यू विल गो फॉर मैकुलर लेजर फर्स्ट. जी सर. Okay. What are the causes of pain during PRP? I think everyone is a bit tired now. सर इसमें आई थिंक वो न्यूरोवास्कुलर बंडल का अफेक्ट आता है कि हम कहते हैं कि 3 और 9 o'clock पे भी नहीं करते बिकॉज वहाँ पे न्यूरोवास्कुलर बंडल होता है. दैट कैन कॉज पेन एंड इन्फ्लेमेशन कैन कॉज पेन Yes. and the exposure to the light, that phototoxicity, but that will not cause pain. But I think inflammation and that affecting the neurovascular bundle will cause pain. Okay. इसका आंसर ये होगा. ठीक है. एनेस्थीसिया आपने ठीक नहीं दिया, मतलब उसकी ड्रॉपिंग ठीक नहीं की, लॉन्ग ड्यूरेशन बर्न्स है या बर्न्स बहुत ज्यादा लगा दिए या 3 और 9 क्लॉक पे ट्रीटमेंट दे दी है, पैरेफरल ट्रीटमेंट कर दी है. ठीक है. एंड सक्सेसिव सेशंस के साथ भी पेन वर्सन हो जाता है. Oh. So how to reduce pain? अगर आपने लेजर स्टार्ट की है एंड पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेन, सो क्या करेंगे आप? सर we'll stop, उसको लोकल एनेस्थीसिया देंगे, उसके नंबर ऑफ बर्न्स को रिड्यूस कर देंगे इन वन सेशन और इंटेंसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं. That's Okay. एक्सक्यूज मी सर. Yes. सर ये सर पेन का आपने डिस्कस किया ना सर. सर एक सेशन में सर अभी हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हमारे पास डिफरेंट ग्रेड्स में हमने कितने बर्न्स देने हैं ना सर. कि जी, मतलब जी. माइल्ड में 2500 और मॉडरेट में 4000 और सीवियर में 7000. लेकिन सर एक सेशन में हमने मिनिमम कितने बर्न्स देने होते हैं मिनिमम टू मेक दैट इफेक्टिव? It depends on the patient कि उसकी कंप्लायंस कितनी है और उसकी थ्रेशोल्ड कितनी है. कुछ पेशेंट्स में आप 300-400 तक बर्न्स देते हो तो उनकी कंप्लायंस खत्म हो जाती है, और कुछ पेशेंट्स के अंदर आप 1500-2000 शॉट्स भी एक सेशन में लगा देते हैं एंड स्टिल दे आर ओके. तो इसमें डिपेंड करता है कि पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप पेशेंट थ्रेशोल्ड के हिसाब से कि आप कितने लगा सकते हैं. सर इसमें असल में ये ना कि हमारे यहाँ पर एक कंसल्टेंट थे तो वो अक्सर ये मतलब कहते थे हमें कि आप जो है कम से कम इस सेशन में एटलीस्ट अगर आपको 1000 बर्न ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि इससे अगर आप कम लगाएंगे तो उसका कोई मतलब एफिकेसी नहीं है. और यहाँ पर जो है फिर दूसरा डायलेमा ये है कि अगर पेशेंट जो है उसका पेन हो, जिस तरह भी आपने ये क्वेश्चन डिस्कस किया जी, कि जी. अगर पेन ज़्यादा हो तो हम जो है नंबर ऑफ बर्न्स को जो है कम कर सकते हैं ना सर. तो ये मैं इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि मतलब एग्जामिनर को बंदा क्या कहे कि कितना हम जो है वो लगा सकते हैं, कम कर आपने सकते हैं. साइंटिफिकली तो ये कहना है कि 1500 बर्न से स्टार्ट करेंगे और डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द रेटिनोपैथी या सेवेरिटी ऑफ द रेटिनोपैथी ये होगा. बट आपने एट पे ये भी कह सकते हैं कि इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द पेशेंट थ्रेशोल्ड फॉर पेन. ठीक है सर, थैंक यू. If the session is going to length, मतलब अगर आप लोग थक गए हैं तो फिर we can stop here. Sir, please carry on the session because this is a topic where we struggle a lot. Okay. So what would be the settings for macular laser?
सर इसमें हमारे पास जो है स्पॉट साइज जो है सर उसमें आई थिंक द स्पॉट साइज बिकम्स 100 एंड द ड्यूरेशन जो है हमारे पास इट बिकम्स 0.1 सेकंड्स। सर वो फिक्स अभी मुझे याद नहीं है फोकल लेजर के लिए कि क्या सेटिंग्स है, लेकिन अबाउट लाइक दिस। These are the settings focal and grid के लिए। Okay. ये अब एक क्वेश्चन वाइवा क्वेश्चन है which is being asked for last I think 2 or 3 attempts because it's a new modality. So इसका आंसर जो है, this is the answer for this question. Okay, what are the type of new vessels at the disc? Okay. These are periphery, which are adjacent to the disc or in the periphery area, and these are papillovitrial, which कैंची के vitreous के अंदर वो grow कर जाती है, which grow in the vitreous. Now this is a very common viva question कि different lesions की location within the retinal layers कहाँ कहाँ होती है. For example, microaneurysms are located in which retinal layer? They are located in the inner retinal layer. Similarly, hemorrhages. Very important question. Anyone wants to answer? I think we should conclude this session. Sir, how many questions are left, sir? There are a lot of questions, so we will discuss them in the next sessions, I think, because I need your participation to carry on. Okay, sir. Okay. So I hope this session would help you a lot in your examination, especially if you get a case of diabetic retinopathy. So please do give me your feedback and how can the sessions can be improved. Okay, thank you. Allah Hafiz.